Hi everyone. This session is highly requested because after watching this session, I guarantee you, not just promise you, but guarantee you that you will be in a position to write a high scoring 150 word answer for UPSC mains. 10 marker question जो होता है ना, उसको कैसे attempt करना है and how you can ace this. I'm going to help you understand that. Watch this session till the very end because ये session आपको काफी help करने वाला है to ace mains. आपको जब भी आंसर राइटिंग की बात आती है देर इज अ फियर ऑफ आंसर राइटिंग बिकॉज टू समराइज आर अंडरस्टैंडिंग आर ओपिनियन इन जस्ट 150 वर्ड्स इज अ चैलेंज. बहुत बड़ा चैलेंज होता है यार 1 to 1.5 पेज में अपने आंसर को समराइज करना. दिस इज नॉट एन ईजी टास्क बट हाउ टू डू दैट will become very easy. So after this session, whatever question, 10 marker question you are going to attempt, trust me on it, you will be literally confident in attempting it. देखो when we talk about GS mains ना, in GS mains around 70% of questions they require 150 to 160 words. Making precision and structure a scoring differentiator, that is another task, another challenge. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पर 1.5-2 पेज के अंदर आंसर लिखना है, आपको उसको डिफ्रेंशिएट भी करवाना है टू दी अदर आंसर शीट्स. आपके आंसर में ऐसा क्या डिफरेंट है? एवरीबडी एल्स वुड बी राइटिंग द सेम आंसर ना. How to make sure that your answer stands out, that is also very important. But what is most important, to know, to understand what UPSC rewards. UPSC reward kisko karta hai? Because if you don't know what UPSC wants, then no matter how good your answer is, there will be no clarity. So UPSC rewards clarity in your answer. It also rewards structure. This is the parameter which UPSC uses to score your answer. It also rewards, write it down, multi-dimensionality. Dimensionality. यहाँ पर लिख लो फटाफट से. That means covering all the aspects. It also rewards examples. It rewards value addition. These are the parameters which UPSC uses to score your answers. आपका एम क्या होना चाहिए इन दिस केस? व्हाट शुड बी योर एम व्हाइल राइटिंग एन आंसर? इट शुड बी टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको एड्रेस करना. स्टे क्रिस्प एंड शो मैच्योरिटी इन एनालिसिस और ऑफ एनालिसिस. दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. ये यूपीएससी दिमाग में रखता है आपको मार्क्स देते वक्त, और ये आपको दिमाग में रखना है आंसर लिखते वक्त उन 7 से 8 मिनट के बीच में. ओके, नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द एग्जामिनर वांट्स. अब एग्जामिनर क्या चाहता है वो अच्छे से समझते हैं, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनर्स डिमांड्स वी कैन नॉट मूव अहेड, है ना. तो लेट अस अंडरस्टैंड एग्जामिनर्स माइंड और एग्जामिनर्स डिमांड फर्स्ट. नाउ first of all you have to understand that examiner wants you, write it down, to complete the addressing of all subparts. आपके आंसर में या आपके क्वेश्चन में जो भी सब पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आल्सो, यू शुड एड्रेस इट ऑल. सेकंड, द एग्जामिनर wants to check the logical structure in your answer, because if your answer is logically structured, that reduces effort for the examiner to go through the answer. अगर हेडिंग, सब हेडिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है आपका आंसर, तो एग्जामिनर के लिए इजी होगा ना आपका आंसर शीट चेक करना. देन एग्जामिनर लुक्स फॉर ब्रेविटी विद सब्सटेंस. दैट मीन्स देयर शुड बी नो फिलर्स. यू डू नॉट हैव टू डू बीटिंग अराउंड द बुश. आप जो भी पॉइंट अपना लिख रहे हो उसमें सब्सटेंस होना चाहिए, उसमें डेप्थ होनी चाहिए, नो शैलोनेस. देन एग्जामिनर लुक्स फॉर अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव. A balanced perspective. That means if the question needs constitutional demand, you should complete it. Economic demand हो वो पूरा करो, social demand हो वो पूरा करो, ethical demand है question का वो पूरा करो. Then the examiner looks for relevant examples, especially contemporary examples. And the most important point which most students miss is that the examiner wants consistent handwriting and a very clean presentation. अगर आप बोलो मैं तो सब सारे डिमांड पूरे करता हूं बट आपका आंसर पढ़ने लायक ही नहीं है, यानी कि पढ़ा ही नहीं जा रहा है, तो उस केस में दिस इज गोइंग टू हार्म योर मार्क्स.
ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट द एग्जामिनर वांट्स. अब ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लो भले ही इसका, बट दिस इज व्हाट एग्जामिनर लुक्स फॉर. सो इफ इन केस यू गेट दिस डाउट कि एग्जामिनर का क्या पीओवी होता है, तो ये पीओवी होता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है. ठीक है, चलो. Now, when once we have understood examiner's POV, now let us start with our gold formula. What exactly is our gold formula? So I'm going to give you a 150 word blueprint. 150 word blueprint. Okay, क्या है वो blueprint? सबसे पहले 20 to 25 words, जो आपके स्टार्टिंग के 20-25 वर्ड्स होते हैं इन एनी क्वेश्चन. It should be a crisp introduction. Okay, so here you have to start, write it down. ये लिख लो, ये blueprint बहुत important है. When you start practicing questions, this blueprint should be in front of your eyes. Start by defining. We will solve a question also. Defining the core concept, or refer to a recent event, committee, or report. Or I'm giving you another example or alternative. State the central issue in one line. दिस शुड बी योर इंट्रोडक्शन. 10 मार्कर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 150 वर्ड ब्लूप्रिंट है, यानी कि 10 मार्क का क्वेश्चन होगा. इन दैट वे द इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी क्रिस्प, 20-25 वर्ड्स का होना चाहिए. एंड ऑल्टरनेटिव ईदर ऑफ दीज कैन बी यूज्ड. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. अब इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो एग्जाम्पल कैन बी, लेट्स से यू कैन राइट, दिस कैन बी द इंट्रोडक्शन. केमिकल डस्ट, इफ अ क्वेश्चन इज ऑन लेट्स से CPCB ट्रायल्स, और क्वेश्चन अगर पोल्यूशन के ऊपर है, तो एक जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. सप्रेसेंट्स, केमिकल डस्ट सप्रेसेंट्स प्रमोटेड बाय CPCB ट्रायल्स since 2018 are emerging as alternatives to conventional water spraying in pollution control. If, because Delhi pollution is in news, if there is a question on, let's say, what steps should be taken to control pollution, or what model should be taken, what alternatives should be taken to control pollution, तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन यू कैन फ्रेम. आइदर यू कैन स्टार्ट, बिकॉज द क्वेश्चन इज करंट अफेयर बेस्ड, राइट, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज पोल्यूशन इज गोइंग ऑन इन नॉर्थ इंडिया, so it is a current affair based question, so you can refer to a recent event, or you can refer to the central issue, and this is how you start by writing the introduction. अगर मान लो क्वेश्चन इज explain the phenomena of cloud burst, तो उस केस में यू स्टार्ट बाय राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्लाउड बर्स्ट. अभी समझ आया डिफरेंशिएशन? करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, देन यू हैव टू use either of these two alternatives in introduction. If it's a static question on a term or on a phenomenon, then use, और history का question है, तो आप you can start by defining the core concept. ठीक है, यहाँ तक point clear हो गया. So this is the introduction. Now let's go to the body of the answer. ठीक है, the second is 90 to 100 words approximately. Here we are going to write the body of the answer with 3 to 4 dimensions. 3 to 4 dimensions. ठीक है, now here you have to use a structured layout, an examiner friendly layout. कैसे? फर्स्ट डायमेंशन दैट यू आर गोइंग टू आंसर. ठीक है, डायमेंशन वाइज आंसर करेंगे. डायमेंशन मतलब अलग अलग एरियाज उस क्वेश्चन के एक्सप्लोर करेंगे. डायमेंशन 1 वुड बी एक्सप्लेनिंग द कोर आर्ग्यूमेंट, दैट वुड बी डायमेंशन 1. देन डायमेंशन 2 पे आ जाते हैं. डायमेंशन 2 वुड बी UPSC रेलेवेंट लिंकेज. ओके, अब इसमें UPSC रेलेवेंट लिंकेज कैसे हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लिंकेज, इट कैन बी इकोनॉमिक लिंकेज, इट कैन बी सोशल लिंकेज. ठीक है, देन डायमेंशन 3 ऑफ द आंसर. डायमेंशन 3
आप चैलेंज बताओगे, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या चैलेंज है या क्या क्रिटिसिज्म है। ठीक है। देन नेक्स्ट डायमेंशन 4 आ जाएगा। डायमेंशन 4 इज ऑलवेज द वे फॉरवर्ड ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड इन द आंसर। वे फॉरवर्ड मतलब क्या सोल्यूशन आप दोगे, व्हाट इज द सोल्यूशन दैट यू विल गिव। ठीक है। इफ अप्रोप्रिएट देन यू कैन मेंशन वे फॉरवर्ड, या ऑप्शनल होता है, दिस इज ऑप्शनल। ठीक है। और उसके अंदर ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू राइट द बॉडी ऑफ द आंसर, दी डायमेंशन 1 2 3 आप बुलेट पॉइंट्स में लिखो। बुलेट पॉइंट्स मीन्स हेडिंग हो गई, पॉइंट्स हो गए, दिस इज दी हेडिंग, लेट्स से दिस इज दी हेडिंग, इसके नीचे 1 2 3 4 और ABCD और रोमन न्यूमरल्स में आ गया। ठीक है। बट ये स्टार बनाना, सर्कल बनाना, टिक बनाना, दिस इज रॉन्ग। यू आर राइटिंग लाइक अ सिविल सर्वेंट, डू नॉट राइट लाइक अ स्कूल स्टूडेंट। आई हैव सीन दिस इन मेनी स्टूडेंट्स कॉपीज। इस तरीके के आप खुद बताओ, एक सिविल सर्वेंट को आपने कभी किसी रिपोर्ट में स्टार बनाते हुए, टिक्स बनाते हुए, ऐसे एरोज बनाते हुए देखा है? So you have to keep in mind that you are giving a very professional exam, not a college exam or school exam. Okay. Now आप मिनी बुलेट हेडिंग के नीचे ही सब हेडिंग दे सकते हो, उसके नीचे पॉइंट्स दे सकते हो। यू कैन यूज माइक्रो फ्लो चार्ट इफ योर हैंड राइटिंग इज गुड। यू कैन यूज मिनी सब हेडिंग्स। ओके। एंड ऑलवेज यूज 7 to 8 कंसाइज मैक्स बुलेट पॉइंट्स। 7 to 8 मैक्स है, कम भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है। Then coming to the next structure, next part of the structure of the answer, which is conclusion. Next, approximately 20 to 25 words would be a smart conclusion. अगर आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हो तो कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, बट अगर आप वे फॉरवर्ड नहीं लिख रहे तो कंक्लूजन मेंशन कर सकते हो। सो हियर यू हैव टू राइट अ वेरी हाई स्कोरिंग कंक्लूजन। नाउ हियर अ कंक्लूजन शुड प्रोवाइड डायरेक्शन की नेक्स्ट क्या होना चाहिए, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सेकंड, इट shows optimism and it should reflect पॉलिसी कोहेरेंस। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है वो कितनी इन सिंक है आपके सोल्यूशन से, वो भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक कंक्लूजन मैं लिखकर दिखाती हूँ। लेट्स से उसी क्वेश्चन पे, द पोल्यूशन वाला क्वेश्चन दैट वी वर हैंडलिंग, दस while chemical suppressants offer efficiency gains, their integration must align or must be in sync with the sustainable urban air quality management। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखना। ठीक है। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर शोइंग पॉलिसी कोहेरेंस ऑल्सो, वी आर शोइंग ऑप्टिमिज्म ऑल्सो, कि ठीक है केमिकल सप्रेसेंट्स एफिशिएंसी गेन्स देते हैं, बट सस्टेनेबल जो भी हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्बन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट गवर्नमेंट बनाती है उसके साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए, सो दैट इट इज नॉट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। Okay, so we have given a very positive forward looking conclusion. Okay, now there is a very important checklist that I want all of you to keep in mind while answering questions. What is that checklist? मैं इसको fast checklist बोलती हूँ। I call it a fast checklist. ठीक है। Basically this will help you to maintain quality. It is a quick quality filter in your answer. इसी basis पे answers are checked and इसी basis पे हम भी answers check करते हैं। So here you have to, what is fast? F means your answer should fulfill the demand of the question. It should address all subparts. A means it should show accuracy. That means whatever facts, data, articles you are mentioning, that should be accurate. S means structure. Introduction, body, conclusion, structure होना चाहिए. And T, 7 to 8 minutes में आपको आंसर लिखना है तो टाइम बाउंड आंसर होना चाहिए। यू विल गेट 7 to 8 minutes ओनली टू राइट द आंसर। Okay, one answer. So these are the things that should be there in your answer, and this is how a quick quality filter you can do while evaluating your answer sheet. वैसे तो सुपर कलाम आपके आंसर शीट को instantly evaluate कर ही देता है। Replace your sentences with bullet points. अपने sentences को हमेशा bullet point से replace करना है। ठीक है, या bullet ideas से, because that gives you structure. सोचने में भी structure मिलता है। You can use keywords instead of full sentences.
राइट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिहेवियोरल चेंज, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। एंड यूज कनेक्टर्स, जैसे कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है, हेंस, ठीक है, जैसे हमने दस यूज किया था, दिस इज अ कनेक्टर, देयर बाय, ठीक है, फर्दर, दीज आर कनेक्टर वर्ड्स, इससे आपकी लैंग्वेज और अच्छी लगती है, सिंपल लगती है। अवॉइड एनी हैवी नरेशन और बैकग्राउंड अनलेस इट इज आस्क्ड, एंड ऑलवेज कन्वर्ट एग्जाम्पल्स इनटू कीवर्ड्स, लॉन्ग फ्रेजेस की जगह कीवर्ड्स यूज करना सीखो, दैट यू लर्न थ्रू रीडिंग द एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स पढ़ोगे आपको समझ आएगा द आर्ट ऑफ राइटिंग। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया? ऑल राइट, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है, एक असाइनमेंट क्वेश्चन आप लोगों को देती हूँ। क्वेश्चन इज डिस्कस द इफेक्टिवनेस, discuss the effectiveness and the limitations, and the limitations of chemical dust suppressants as a measure, as a measure to control particulate particulate pollution, because pollution is in news, तो यू शुड राइट अ क्वेश्चन आंसर ऑन इट, ठीक है। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, आई टोल्ड यू द इंट्रोडक्शन, आई टोल्ड यू द कंक्लूजन, बॉडी आपको बनाना है, मैंने आपके लिए दो चीजें सॉल्व कर दी हैं ऑलरेडी। दिस इज द बॉडी। नाउ बॉडी में ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू राइट अबाउट द इफेक्टिवनेस एंड लिमिटेशंस, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होगा। इफेक्टिवनेस क्या हो सकता है, केमिकल डस्ट सप्रेसेंट का क्या इफेक्टिवनेस हो सकता है, यू हैव टू सर्च विद सुपर कलाम टुडे, सो यू कैन इंस्टॉल सुपर कलाम्स ऐप, सुपर कलाम का ऐप इंस्टॉल कर लो, ठीक है, एंड देन स्टडी विद सुपर कलाम, सुपर कलाम से स्टडी करना है, यू कैन राइट द क्वेश्चन एज इट इज एंड स्टडी, और यू कैन जस्ट राइट एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस of chemical chemical dust suppressants, okay, to control pollution with examples. So when I ask this question, जब मैं ये question पूछूंगी, I'll get important notes from super kalam, and through that I can create my answer. तो research करना जरूरी है, you can start researching also, this is one of the best ways of utilizing super kalam. See कितना सही तरीके से tabular format में super kalam is explained with the help of examples, and see this is a mind map also which you can use. यहाँ पर देखो आपको mind map भी super kalam दे रहा है, what best than this? And once you write your answer, I want all of you to get your answers evaluated by super kalam and tell me your scores in the comment section. I'll be waiting for your scores today. इसमें आपको, and also write down the time taken by you to research about this question and time taken to write this answer. 7-8 मिनट से ज्यादा हो, 15-20 मिनट तो चलेगा, ठीक है, बट एटलीस्ट आपने आंसर लिखा, दैट व्हाट मैटर्स। ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड द टाइम टेकन टू रिसर्च एंड टाइम टेकन टू राइट, डू लेट मी नो, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपने ये चैलेंज अटेम्प्ट कर लिया, ये चैलेंज आपने पार कर लिया, you are going to be one step ahead than anybody else in this preparation. Okay, thank you so much everyone.